यरूशलेम के फाटक को राजा को अंदर आने दो। बड़े बुक में 422 हिंदी में, बड़े बुक में हिंदी में 422 है। తెలుగులో 404, తెలుగులో 404। ये शीट में 7 नंबर है। के फाट को राजा को अंदर आने दो, हसमुख मंडल से प्रभु का स्वागत उसका तुम करो। हसमुख मंडल से प्रभु का स्वागत उसका तुम करो। यरूशलेम के फाटकों वो आता देखो विजय से, शत्रु पर जयवंत होके। वो आता देखो विजय से, शत्रु पर जयवंत होके। खजूर की डाली वस्त्र क्या है, हृदय अपना बिछाए दो। खजूर की डाली वस्त्र क्या है, हृदय अपना बिछाए दो। यरूशलेम के फाटकों राजा को अंदर आने दो, हसमुख मंडल से प्रभु का स्वागत उसका तुम करो। हसमुख मंडल से प्रभु का स्वागत उसका तुम करो। यरूशलेम के फाटकों रोको ना इन बच्चों को, ना वृद्ध और जवानों को। रोको ना इन बच्चों को, ना वृद्ध और जवानों को। प्रभु की विजय में इनको सना सना गाने दो। प्रभु की विजय में इनको सना सना गाने दो। यरूशलेम के फाटकों राजा को अंदर आने दो, हसमुख मंडल से प्रभु का हसमुख मंडल से प्रभु का स्वागत उसका तुम करो। यरूशलेम के फाटकों ठुकराते दया प्रभु की, अपने ओछे कामों से। ठुकराते दया प्रभु की,
थोड़ा तेलुगु में गाना गाते हैं. యేసు ప్రభువే నీకు రక్షణనిచ్చును, ఇంత గొప్ప రక్షణ నిర్లక్ష్య పెట్టకు. సాంగ్ నంబర్ 4 గిడినన్న. యేసు ప్రభువే నీకు రక్షణనిచ్చును, యేసు ప్రభువే నీకు రక్షణనిచ్చును, ఇంత గొప్ప రక్షణ పెట్టకు, ఇంత గొప్ప రక్షణ బలి
చేసెను మరణ బలం కలవారి నాశనము చేసెను మరణ భయములో నిన్నా వారిని విడిపించెను మరణ భయములో నిన్నా వారిని విడిపించెను బలిగా నీడేను కొనేగాదా బలిగా నీడేను కొనేగాదా హృదయము తెరువు యేసును చేర్చుకో హృదయము తెరువు యేసును చేర్చుకో యేసు ప్రభు నీకు రక్షణ ఇచ్చును యేసు ప్రభు సిలువ రక్తము చేతము వారిని సిలువ రక్తము చేతను నిర్జీవులైన వారిని మద్యపు గోడలు పడగొట్టి ఐక్యపరచే దేవునితో మద్యపు గోడలు పడగొట్టి ఐక్యపరచే దేవునితో బలిగా నీడేను కొనేగాదా బలిగా నీడేను కొనేగాదా సమాధాన పాడునికా దేవునితో ఇచ్చలాని సమాధాన పాడునికా దేవునితో ఇచ్చలాని యేసు ప్రభు నీకు రక్షణ యేసు ప్రభు నీకు రక్షణ గొప్ప రక్షణ నిర్లక్ష్య పెట్టకు గొప్ప రక్షణ నిర్లక్ష్య పెట్టకు యేసు ప్రభు నీకు రక్షణ యేసు ప్రభు నీకు रक्षण आइए और एक गीत गाते हैं, आखिरी गीत। सॉन्ग नंबर 3। చూడుము ఈ క్షణమే కల్వారిని ప్రేమ ప్రభువుని కనిలుచుండెను గొప్ప రక్షణని సిలువాను వేలాడుచున్నాడుగా సిలువాను వేలాడుచున్నాడుగా ప్రాణములెంత
నరక రాజాని రాయరుగారు చూడుము ఈ క్షణమే కల్వారిని ప్రేమా ప్రభువుని కల్పిలచుండేను గొప్ప రక్షణనివ్వ యేసుడు సిలువలో వేలాడుచున్నాడుగా సిలువలో వేలాడుచున్నాడుగా ప్రియమందు నీకు కలవనియు చనిపోవు సమయాన వెంటారాలు కలవనియు చనిపోవు సమయాన వెంటారాలు చనిపోయిన నీవు లేచేదవు తీర్పు ఎరుగో దినమునా లేచేదవు తీర్పు ఎరుగో దినమునా చూడుము ఈ క్షణమే కల్వారిని ప్రేమా ప్రభువుని కల్పిలచుండెను గొప్ప రక్షణనివ్వ యేసుడు సిలువలో వేలాడుచున్నాడుగా సిలువలో వేలాడుచున్నాడుగా మనలను ధనవంతులు చేయను దరిద్రులాయే మన ప్రభువు మనలను ధనవంతులు చేయను దరిద్రులాయే మన ప్రభువు రక్తము మార్చే పాపులకై అంగీకరించు वचन की सेवकाई को प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। మహాపరిశుద్ధుడైన తండ్రి మీ ఘనమైన నామమునకు స్తుతి స్తోత్రాలు సమర్పిస్తున్నాం. हमारे अति पवित्र परमेश्वर आपके नाम की स्तुति धन्यवाद चढ़ाते हुए इस समय में आते हैं। ఉదయకాలం నుండి ఇంతవరకు అద్భుతమైన సమయాన్ని మీరు మాకు అనుగ్రహించిన విధానం బట్టి మీ స్తోత్రములు. सवेरे से लेकर अब तक आपने हमको एक अद्भुत समय प्रदान किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। సంఘం యొక్క మర్మాన్ని గురించి అనేక నూతనమైన సత్యాలను నూతనమైన ప్రత్యక్షతను మీరు నాకు మాకు అనుగ్రహించిన విధానం బట్టి మీకు స్తుతి స్తోత్రాలు. मंडली के विषय में बहुत सारे नई बातों को और नई विवरण को और प्रकटीकरण को आपने मुझको और हम सबों को सिखाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। మా జీవితంలో దినదినం ఒక నూతనమైన విధానంలో మీరు ఆకడ కొరకై
సిద్ధపడాలని పదే పదే హెచ్చరించిన విధానం బట్టి మీ స్తోత్రములు. और आपके आगमन के लिए मेरे और हम सबों के जीवनों में एक नए रीति से हमको तैयार होना है. इस रीति से चलाव नहीं दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. మరోసారి మీ దాసుని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. మరి శిలజోటను మరుగుపరచండి, అనేకులు ప్రతి ఒక్కరికి కావాల్సిన మాటలు మీరు అనుగ్రహిస్తారండి అని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం. और आपके दास को और एक बार आपके चरणों के पास लाते हैं, कलवरी क्रूस के आड़ में छिपाकर आपके लोगों की लाभ के लिए बहुतायत की बातें हमें सिखाएंगे. आपसे मिन्नत करते हैं. మమ్మల్ని అందరూ మరోసారి మీ రక్త ప్రోక్షణ కోరుకుంటున్నాం. మా యొక్క తలంపుల ఆలోచనలన్నీ కూడా మీ వాక్యమైన దృష్టించి సరిగా చక్కగా అర్థం చేసుకున్నట్లు కూడా విశేషమైన మీ కృప మా అందరికీ కూడా దయచేయండి. हम सबों को आपके बहुमूल्य लहू के छिड़काव के नीचे ले आते हैं और प्राण आत्मा देह को पवित्र करें. हमारे दृष्टिकोण, हमारे सोच विचार को आप ही के ऊपर केंद्रित करें. आपके वचन को अच्छे से समझने के लिए भी हमारे मनों को खोलिए. ప్రభు యేసుక్రీస్తు ఘనమైన నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. और महिमित प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं. आमीन. आमीन. हैं. I think we have good lunch. ऐसा मानता हूं कि आपने अच्छा भोजन किया है. Good is a small word. गुड बहुत ही छोटा शब्द हमने इस्तेमाल किया. Very good lunch. बहुत अच्छा खाना खाया. But the problem and the danger is, और इसके साथ समस्या और खतरा ये है, after having such a food, इतना अच्छा खाना खाने के बाद the weight of the upper lids becomes heavier. आंखों की ऊपर की जो पलक है बहुत भारी हो जाता है. They try to close the eyes. वो आंखों को बंद करने पे मजबूर कर देते हैं. It's not our fault. ये अपनी गलती नहीं है. Those who served the food. और ये खाना जिसने परोसा उनकी गलती है. Do you call like that? ऐसा बोलोगे? Okay, let us put some effort to be awake. और थोड़ा यत्न कर कर हम जागरूक रहने की कोशिश करेंगे. The reason is, इसका कारण ये है, 2 Timothy chapter 2 verse 5. दूसरे तिमोथी दूसरा अध्याय 5 वचन. We shall read it together, please. हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे. 2 Timothy chapter 2 verse 5. दूसरे तिमोथियस की दूसरी पत्री 5 वचन. सब मिलकर पढ़ेंगे साथ में. आइए ऊंचे स्वर में पढ़ते हैं. फिर अखाड़े And में if a रहने man वाला also यदि strive विधि for के अनुसार न masteries, लड़े, yet तो is he मुकुट not नहीं crowned पाता. except he strive lawfully. May the Lord add blessing upon the reading of His word. और इस वचन के पढ़े हुए भाग पर प्रभु अपनी आशीष को जोड़ दे. Brother has already prayed for the meeting, so we will start directly studying the word. हाँ, क्योंकि भाई ने वचन के लिए प्रार्थना कर रखा है, हम सीधे वचन के अध्ययन में पहुंच जाएंगे. We shall look at a different aspect of a believer's life. और विश्वासी जीवन के और एक दृष्टिकोण को हम देखेंगे. Shall we turn to the letter to the Philippians, और फिलिपियों की पत्री की ओर मुड़ेंगे. chapter 3, तीसरा अध्याय verse 10 to 14. 10 से लेके 14 वचन. फिलिपियों की पत्री Yes. 3 अध्याय 10 to 14. 10 से लेके 14. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 10 నుంచి 14 వచనం. మార్చ్ responsibly. మార్చ్ చదువుకోండి. ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं. If any means I might attain to the resurrection of the dead. 12 वचन. यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जा रहा हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था. Brother, I count not मेरी भावना myself to यह have नहीं कि मैं apprehended, पकड़ चुका हूं, but this परंतु one thing केवल I do, यह एक forgetting काम those करता things हूं which are कि behind, जो बातें पीछे and रहेगी reaching उनको forth भूलकर unto those आगे things की बातें which are उनकी ओर बढ़ता before. जाऊं. 14 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे. I निशाने press की ओर toward the mark for the दौड़ा चला prize of the जाता high हूं ताकि calling वह of इनाम God in पाऊं Christ जिसके लिए Jesus. परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है. Also we shall read together 20 and 21 verses. और 20 और 21 वचन सब साथ मिलकर पढ़ेंगे.
For our citizenship is in heaven, from which also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our lowly body, that it may be fashioned like His glorious body, according to the working by which He is able even to subdue all things अपनी unto महिमा के Himself. देह के अनुकूल बना देगा। So here Paul is talking about something which is very common to all of us. और प्रेरित पौलुस जो है हम सबों के लिए सर्वसाधारण कुछ बातों के बारे में कर रहा है। Recently we have seen Paris Olympics. और हाल ही के दिनों में हम पेरिस ओलंपिक्स को देखा है। And now the Paralympics are going on. अब जो है पैरालंपिक्स जा रहे हैं। This is a part of a human life where people compete. और इस जीवन के कुछ ऐसे क्षण हैं जहाँ पर एक मनुष्य जो है दूसरे मनुष्य के साथ In games. खेल कूद के अंदर मुकाबला करता है। In the old Roman Empire, और पुराने रोमन एम्पायर में they used to have these sports. एक दूसरे के खिलाफ जो खेल खेलते थे। They used to have chariot races और उनके रथों के जो मुकाबले होते थे and running races. और दौड़ भाग के मुकाबले होते थे। They used to support all these athletic things. और ऐसे भाग दौड़ खेल कूद के संबंध बातों को जो है बहुत प्रोत्साहन देते थे। So they are well exposed to these things. और इन बातों को बहुत ही सुपरिचित थे। We are also exposed. हम भी सुपरिचित हैं। But only thing is we Indians get always bronze medals, mostly. ब्रॉन्ज कांस्य पदक को हम जो है जीत जाते हैं। I tell you why we get like that. और ऐसा कांस्य पदक तक क्यों पहुंचते मैं बताता हूँ। Normally nobody practices for a bronze medal. हाँ, कोई भी जो है कांस्य पदक के लिए कोई यत्न नहीं करता या फिर शिक्षा नहीं पाता। Everybody practices for a gold medal. हाँ, जितने भी प्रशिक्षण पाते हैं तो स्वर्ण पदक के लिए के जो प्रशिक्षण पाते हैं। So the best one is given the gold medal. और जो सर्वश्रेष्ठ है उसको स्वर्ण पदक दिया जाता है। That is actually the target or the purpose for holding those sports. और हर खिलाड़ी के खेल कूद में जाने का मकसद यही रहता है कि मैं स्वर्ण पदक जीतूं। But one who comes second, पर जो almost the first, पहले स्तर तक पहुंचते पहुंचते रह जाकर जो दूसरे पद तक रह जाता है, he also tried a lot. वो भी बहुत यत्न किया। So they gave a silver medal first. उसको चांदी का पद देते हैं। The rest of them they will be crying. और उसके बाद के लोग तो रोते ही रहते हैं। अरे ये क्या हो गया मुझे? What has happened to me करके रोते रहते हैं। Whole year I practiced. पूरा साल मैंने यत्न किया। So to console their crying, और उनके रोने को थोड़ा दिलासा देने के लिए they have another medal called bronze medal. और एक पदक रख दिया जिसका नाम है कांस्य पदक। Now you understand where we Indians are in these groups. और इस झुंड में भारतीय कहाँ हैं आपको समझ में आ जाता है। Even believers are in this race. और विश्वासी भी जो ही ऐसी दौड़ भाग में है। So Paul has used this picture of competition among sports. और इस खेल कूद के मुकाबले के इस चित्र को जो है प्रेरित पौलुस आपके और मेरे जीवन के बारे में इस्तेमाल करता So है we can learn spiritual lessons from this. ताकि इसमें से जो है हम आत्मिक पाठ को सीख लें। So in 2 Timothy chapter 2 verse 5, और दूसरे तिमोथेयुस के दूसरी पत्री 5 वचन में an athlete, एक मुकाबला में शामिल he व्यक्ति cannot be crowned until he plays it lawfully. और जब तक कि मतलब वहां के नियमों के अनुसार वो लड़ता नहीं तब तक उसको जो है पदक नहीं मिलता। So we have to all follow rules. हम सबों को नियमों का पालन करना है। If our weight increases by 100 grams, हमारा वजन 100 ग्राम से भी बढ़ जाए you get disqualified. हमको जो है उस मल्लयुद्ध से निकाल दिया जाता है। Unfortunately, all these things happen to us only. हाँ, ये सब बातें हमारे साथ ही होते हैं। But we have to fight these sports और पर इन खेल कूदों के अंदर हमें भाग लेना है according to rules. हाँ, नियमों के अनुसार करना है। So we shall see what these rules. हाँ, पर इनका नियम कानून क्या है इसको हम देखेंगे। We are in a spiritual race. हम एक आत्मिक मल्लयुद्ध में हैं। God has put this race for us. और प्रभु ने जो है हमारे लिए ये मल्लयुद्ध रखा है, ये दौड़ भाग को रखा है। We have to run this race. और इस दौड़ में हमें शामिल होना है। In the Olympics, they give only medal for those who are succeeded in or first, second or third. और ओलंपिक्स के अंदर जो पहला, दूसरा और तीसरे पद में आता है उन्हीं को जो है पदक दिया जाता है। The rest of them they have to come back home. और बाकी लोगों को तो खाली चूचे हाथ जो है घर पहुंचना पड़ता है। Yeah. But in the spiritual race, पर आत्मिक इस दौड़ भाग के अंदर everybody will get a medal. हम में से हर एक को जो है पदक दिया जाएगा। Some kind of medal will get. हाँ, कुछ ना कुछ पदक जरूर मिलेगा। But we must earn for the best. हाँ, पर हमको क्या करना है? सर्वश्रेष्ठ पदक के लिए यत्न करना है। God has given some principles. और प्रभु जो है इसके लिए कुछ नियम दिए हैं। See we here in the book of letter to the Philippians, फिलिपियों की पत्री को देखिएगा and in this chapter,
और इस अध्याय के अंदर he deals with the principles of spiritual race. और आत्मिक दौड़ भाग के बारे में जो है कुछ नियमों को बता रहा है। There are some principles. यहाँ पर कुछ सिद्धांत है If we follow these things, और इनका पालन अगर हम in करेंगे this spiritual race, we will और win a crown. इस आत्मिक दौड़ भाग में जो है हम मुकुट को पाएंगे। It says in verse 11, the prize of the high calling of God in Christ Jesus. और मसीह यीशु के ऊंची बुलावट की अंदर कहता है, That time when we get the crown, और जब हम इस दौड़ में हम उस मुकुट को पाएंगे oh, we'll be filled with happiness. वो बड़े आनंद के साथ भर जाएंगे। So what are the principles? और इस सिद्धांत क्या है? Don't think that only those who take part in Paralympics or Olympics, they only are bothered. Why should we be bothered? हाँ, वो ओलंपिक में जाने वाले, पैरालंपिक में जाने वालों को ही इसकी चिंता करना चाहिए। आपको और मुझको इसके बारे में सोच विचार करने की क्या जरूरत है, ऐसा मत सोचिएगा। We have enough of races in this world. इस जगत संसार में भी हमारे बहुत सारे दौड़ भाग हैं। Brother, from morning we are already in a race. अरे भाई, हम तो सवेरे से ही दौड़ भाग में यहाँ पहुंचे हैं। By the night time also we continue racing. और लौट कर शाम को घर पहुंचेंगे, उसमें भी हम दौड़ भाग में ही They रहेंगे। are about the physical life in this world. हाँ, हम हमेशा इस शारीरिक आंखों से इन बातों को देखते हैं। Among all these things, God has put a spiritual race. हाँ, पर इन सारी बातों के बीचों बीच परमेश्वर ने एक आत्मिक दौड़ भाग को भी रख रखा है। The first principle of the spiritual race, और इस आत्मिक दौड़ भाग का पहला आत्मिक सिद्धांत ये है, verses 4 to 6. और 4 से 6 वचन, Though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath the reasons for which he might trust in the flesh, I more. Circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. और फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 4 से 6 वचन तक, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं, यदि किसी और की शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश का और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। This part I have put a title, Poverty of the Flesh. और इसके लिए मैंने एक शीर्षक लिखा कि शरीर की दुर्बल या शरीर की गरीबी। It says in verse 3, last portion, और तीसरे वचन के आखिरी भाग में कहता है, and you have no confidence in the flesh. और शरीर पर भरोसा नहीं रखता। Flesh is been described with so many meanings in the scripture. और वचन के अंदर शरीर को जो है कई रीतियों से जो है इसका वर्णन किया जाता है। Now we are talking about the ethical meaning of the word flesh. और शरीर के एक एथिकल नैतिक रीति से इसका जो है हम इसका समझने की कोशिश करेंगे। In Ephesians chapter 2, और इफिसियों की पत्री 2 अध्याय, first 3 verses, पहले 3 वचन, we have 4 enemies mentioned there. यहाँ पर 4 शत्रुओं के बारे में लिखा गया है। And you hath he made alive who were dead in trespasses and sins. और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। The first enemy, सबसे पहला शत्रु, trespasses and sins. पाप और अपराध, Unforgiven sins. और पाप जिसकी क्षमा हमने नहीं पाया। Because of those things we get guilt conscience. और इन पापों के कारण से हमारे ऊपर जो हमारे विवेक के ऊपर दोष का आरोप होता है। This guilt conscience, और ये विवेक का दोष जो है, nothing can take away इसको कोई नहीं निकाल सकता है, except the blood of Lord Jesus केवल Christ. प्रभु यीशु मसीह का लहू ही निकाल सकता है। The second enemy is दूसरा शत्रु जो है, in verse 2. दूसरे वचन के And in अंदर, which times past you walked according to the course of this world. जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर चलते थे। This samsar is translated from a word in Greek, cosmos. और यूनानी भाषा कॉस्मोस से जो है ये संसार शब्द को निकाला गया है। And in this English it is translated as world. और आंग्ल भाषा में दुनिया या फिर वर्ल्ड कर कर कहते हैं। This world means not the world that we see. और ये दुनिया का मतलब ये नहीं जो दुनिया आपको दिखाई दे रही है, It is not cosmos. और ये कॉस्मोस नहीं है। First Peter chapter 3, और पहला पत्रस का 3 अध्याय, first 3 verses. पहले 3 वचनों में, A sister should excuse me और बहनें मुझे क्षमा करें, because the meaning of cosmos is there. और वहां पर कॉस्मोस का अर्थ दिखाई पड़ता है। Here it is told to the sisters, women.
और यहाँ पर Wives. पत्नियों के बारे में पत्नियों के बारे में, बहनों के बारे में बताया जा रहा है। Verse 3. तीसरा वचन, While adorning, let it not be that outward adorning of braiding the hair and of wearing of gold or of putting on of apparel. तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। The word adorning here, I know what is written in Hindi. और श्रृंगार, श्रृंगारना, Telugu it is velupati alankaram. हाँ, बाहरी जो श्रृंगार के बारे में बातें कर रहा है। This word is actually translated from Greek cosmos. और ये श्रृंगारा जाना, ये शब्द जो है कॉस्मोस से यूनानी में निकाला गया है। That means cosmos means what is the meaning of cosmos? और कॉस्मोस का मतलब क्या है? Outer और बाहरी, adorning. और जो श्रृंगारना। The literal meaning of cosmos is और इस कॉस्मोस का जो एक विवरण ये है, it's a beauty, order, arrangement. और सुंदरता, क्रम और उसका श्रृंगारा जाना। There is some beauty and order in this world systems. और इस जगत संसार के रीति रिवाजों में कोई एक क्रम है, कोई सुंदरता है, And it deceives us. और वो जो है हमको बहका देता है। It makes us to desire it. और ये इस तरीके से हम पर प्रभाव डालता है कि हम उसको चाहने लग जाते हैं। And most of the time we spend our time, energy, money to get that. हम हमारे शक्ति, बल और धन को जो है इसी को पाने में हम जो है निभा देते हैं, It's our enemy. और वो हमारा शत्रु बन जाता है। Don't forget that. और इसको कभी मत भूलना। We are here for the new creation. और यहाँ पर हम जो है नई सृष्टि से हैं, We are not for the old creation. और पुराने सृष्टि के लिए नहीं है, Not for this world. और इस जगत संसार के लिए नहीं है। This world is under the wrath of God. और ये जगत संसार, प्रस्तुत का जगत संसार जो है परमेश्वर के क्रोध के नीचे है। In James chapter 4 verse 4, और याकूब के 4 अध्याय 4 वचन ye में, adulterers and adulteresses, know ye not the friendship of this world is enmity with God? ये व्यभिचारियों और व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि इस जगत संसार के साथ दोस्ती परमेश्वर के साथ शत्रुता है? This is enmity with God. और ये परमेश्वर के साथ शत्रुता है। This world system is against the system of God. और ये जगत संसार का जितनी भी तौर तरीके हैं, ये परमेश्वर के तौर तरीकों के खिलाफ हैं। If we take the side of the world, अगर जगत संसार की अगर हम दृष्टि we करेंगे, become enemies to God. हम परमेश्वर के शत्रु बन This जाएंगे। is a very, very important and a very sensitive thing. और ये हमारे लिए बहुत ही प्रमुखता रखने वाला, बहुत ही चिंताजनक बात है। Knowingly or unknowingly, चाहे जानबूझकर या फिर अनजाने में, the world traps us. और जगत संसार जो है हमको जकड़ लेता है, We will work for the world. और जगत संसार के लिए हम काम करते रहते हैं। Everybody wants to go to US. और हर कोई जो यूएस जाना चाहता We है, also want to go as US. हम भी यूएस ही जाना चाहते हैं। Everybody is having a second house. और दूसरे, हर एक के पास दूसरा घर है, We also want to have a second house. हमारे पास भी दूसरा घर चाहिए। Everybody has a second floor to the same house. उसी घर का दूसरा मंजिला भी है, We also make a second floor. हमारे घर का भी हम दूसरा मंजिला बना लेते हैं। It's not bad that you shouldn't have all these things. ऐसा नहीं कहता कि इन सारी बातों को तुम्हें संप्राप्त नहीं करना But what is है, there inside the पर heart? हमारे हृदय के भीतर क्या है? Pride, घमंड। comparison. No, pride is the very, very serious sin. और ये घमंड जो है सबसे खतरनाक पाप है, It is a very khatarnak, dangerous sin. बहुत ही खतरनाक। It is pride which made the Saturn, the morning star, fall. और ये भोर के तारा शैतान जो है उसको मार गिरा डालने वाला जो एकमात्र कारण है वो घमंड है। Somehow it appears in our lives. किसी ना किसी रीति से हमारे जीवन में वो प्रस्तुत हो जाता Even है, to the great men of God. और परमेश्वर के बड़े जनों के जीवनों में भी। Nobody can escape from that. और कोई भी जो इससे बच नहीं सकता है। Oh, the devil has brought such a fall in us. और शैतान जो है हमारे जीवनों के अंदर ऐसे पतन को उत्पन्न किया है। Pride basically is comparison and competition. और घमंड जो है हमारे जीवनों के अंदर एक दूसरे के साथ तुलना करना, या फिर एक दूसरे के खिलाफ जो है हम प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, That's pride. और ये घमंड है। Simple thing. साधारण सी बात है। When people call consumerism, consumerism, कंज्यूमरिज्म ऐसे एक शब्द को हम देखते by हैं, which the companies they sell their products to हाँ, us. मतलब ये जो खरीदार जो है खरीदारी के अंदर बहुत उत्सुक होता है, जिस कारण से कंपनी जो है अपने को कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं। What is consumerism? और ये खरीदारी का मतलब क्या है? These companies want us to purchase things which we do not have हाँ, हमारे पास जो नहीं है उनको वो बेचना चाहते हैं, with the money which we do not have. और उस पैसों से जो हमारे पास है ही नहीं, The things which we do not need हाँ, और उन चीजों को जो हमारी सख्त वास्तव में जरूरत भी नहीं है, to impress upon our neighbors
whom we don't like. हाँ, सोचिएगा जिनको हमारी जरूरत, जिसकी हमकी जरूरत नहीं है, जिसको खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, फिर भी हम खरीद रहे हैं। किस लिए खरीद रहे हैं? इनको चमकाने के लिए, इनको हम इनके नजर में अच्छे दिखने के लिए हम खरीद रहे हैं। That's the competition. इनको जो है हम एक प्रतियोगिता कहते हैं। Sisters, be careful. ब्रदर्स ऑल्सो। Yeah, brother, nobody is. It happens like that. ऐसा हो जाता है। Does it work, without our conscience, it works in us. हाँ, हमारे सोच विचार के बगैर हो जाता है। That is world. हाँ, ये जगत है जो हम पर प्रभाव डाल देता है। The third enemy is और तीसरा शत्रु जो है, Ephesians chapter 2 verse 2. इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 2 वचन। The prince of the power of the air. और इस आकाश के अधिकार के हाकिम। Of course, enemy is, the devil is our enemy. और शत्रु हमारा शैतान है। He brings all sorts of traps he puts. बिन बिन तरीके के फंदे हमारे लिए डाल देता है, That we go away from God. ताकि हम परमेश्वर से दूर हो The जाए। fourth enemy is, और चौथा जो शत्रु है, verse 3, तीसरा वचन, the lusts of our flesh. शरीर की लालसाएं। This is a very dangerous enemy. बहुत ही खतरनाक शत्रु है। It is always with us. वो हमारे संग संग ही चलता है। It puts so many demands on वो us. हमारे ऊपर इतने सारे बोझ लाद देता है। Oh, it says after food you can just sleep off. अरे खाना खाया You ना may तो be hearing something. Don't अरे worry in the meeting. सभा में बैठे तो क्या हुआ, अभी तो खाना खाया। Body थोड़ा body जबकि demands लेना all those करके things. जो शरीर जो है हम पर ये लालसा डालता है। It demands pleasure, sleep, हाँ, हमसे- sin, so many things. हाँ, ये Food. शरीर जो है हमसे आराम को या फिर विश्राम को या फिर आनंद को या लुफ्त को जो है हमसे चाहता है। This flesh has all kinds of such demands. और ये शरीर जो है हम पर इतने सारे मांग को डाल देता है। Doesn't allow God's purpose to be fulfilled in our lives. हमारे जीवनों के अंदर परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा होने से वो रोक देता है। It puts brakes in our spiritual race. हमारे आत्मिक दौड़ के अंदर जो है वो ब्रेक डाल देता है। Paul cites here 7 things. और प्रेरित पौलुस जो है यहाँ पर 7 बातें बता रहा है। We can compare what we have with us. और इन बातों को जो है हमारे पास क्या है उससे हम तुलना कर देख सकते हैं। Circumcise the 8th day. he हाँ, says. देखिएगा वो कहता है कि मैं 8वें दिन से खतना पाया हूँ। According to Jewish tradition, he is in a covenant relationship with God. और यहूदियों के विषय में वो परमेश्वर के साथ एक करार के संबंध में है। Oh, no, brother, I am from boxing days. I'm a believer in Hebron. इसकी तुलना हमारे साथ करें तो हम बोले हम तो छुटपन से ही बक्सिंग भाई की असेंबली में है कर। But how close are you to Lord Jesus पर Christ? प्रभु यीशु मसीह के कितने And निकट? don't ask that. हाँ, वो मत पूछना। So that's kind of a religious pride. हाँ, एक धार्मिकता के संबंध का एक घमंड है। A holier than thou attitude. हाँ, आपसे भी हम पवित्र हैं या पवित्र जन हैं, इसका ऐसा एक अभाव है। That takes us away from God. और ये जो है हमको परमेश्वर से दूर कर It देता है। puts brakes in our spiritual हमारे race. आत्मिक दौड़ भाग के अंदर जो है वो एक लगाम डाल देता है। Yeah, of the stock of Israel. हाँ, वो कहता है कि इस्राएलियों का वंश का हूँ। Of the God's chosen people. हाँ, मतलब परमेश्वर के चुनिंदगी प्रजा का हूँ। Of the tribe of Benjamin. और बेन्यामीन के गोत्र का हूँ। फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय। We are the royal tribe, no? हाँ. First king came from Benjamin. हाँ, बिन्यामीन का गोत्र क्यों कह रहा है? क्योंकि इस्राएलियों का पहला राजा है बिन्यामीनियों से निकला Of the है। Hebrews. अरे मैं इब्रानियों का इब्रानी हूँ। I am the topmost example, standard. हाँ, मैं किसी का उदाहरण लेना है या किसी का उल्लेख देना है तो उसमें से सर्वश्रेष्ठ माना जाता हूँ। As touching the law, a Pharisee. और व्यवस्था के विषय में तो फरीसी हूँ। I am expert in the word of God. हाँ, परमेश्वर के वचन के अंदर मेरे जैसा लिखा पढ़ा कोई और How much नहीं है। is there in the life? That is another question. How much is there in the वचन life? कितना जीवन में लागू है उसका कोई मतलब मत पूछिए। Such kind of pride. ऐसा घमंड है। Touching the law, that is verse 6. 6 वचन। Concerning zeal, persecuting the church. और फिलिपियों की पत्री 3:6 के अनुसार उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला। Touching the righteousness which is in the law, blameless. और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। He is only blameless but not sinless. हाँ, वो निर्दोष तो था मनुष्यों के नजर में, पर पाप से दूर नहीं था। This is all the 7 degrees of Paul. और प्रेरित पौलुस के 7 ये गुण हैं। In the visiting card, you can put all these 7 things और अगर as अपना his degrees. अपना विजिटिंग कार्ड अगर किसी को दे तो 7 बात जो है वो लिख सकता है। But what the Paul says? पर प्रेरित पौलुस क्या कहता है? No, he puts the second principle of a spiritual race. और एक आत्मिक दौड़ भाग का दूसरे आत्मिक सिद्धांत को हमारे सामने प्रस्तुत What कर he रहा है। thought was advantageous for him, और जो कोई उसके लाभ का उसने माना है,
he put it as dung. और उसको उसने कूड़े समान माना. I call this, I put a title, verses 7 to 11, as passion for Christ. और 7 से लेके 11 वचन को जो है प्रभु के लिए उसकी एक उत्साह को मैं कहता हूं. First one is poverty of flesh. और सबसे पहले जो है शरीर की जो गरीबी या फिर दुर्बलता के बारे में बातें कर रहा Unless हूं. you remove those things, you cannot run the race. जब तक कि तुम पहले भाग के 7 बातों को तुम्हारे जीवनों से नहीं निकालते तुम दौड़ में शामिल नहीं हो सकते. So once you remove some things, और कुछ बातों को निकालने के बाद you have to get some more things. और कुछ और बातों को उसमें जोड़ देना Now चाहिए. Paul turns himself into an accountant. अब जो प्रेरित पौलुस जो है ये लिखा पट्टी करने वाला एक अकाउंटेंट बन गया है. So in English, it is verse 7 says, I counted loss. हाँ, वो 7 वचन में देखिएगा इनको मैंने कूड़ा मान लिया या फिर गिन लिया कहता है. And verse 8 says, और 8 वचन कहता है in the middle it is, and do count them but dung. हाँ, और इनको मैं कूड़े समान गिनता हूं. How can he do that? कैसे कर सकता है? These advantageous things in the world, और ये जो कुछ जगत संसार में लाभदायक बातें हैं how can he count it as a dung? उनको कैसे कूड़ा गिन सकता है? You don't like dung to attach to our body or clothes. हाँ, कूड़ा हमारे शर्ट पे या पैंट पे या फिर हमारे देह पे लग जाए तो हमको एकदम विचलित हो जाते हैं. Somehow we have to come immediately remove those clothes. हाँ, आके तुरंत हम कपड़े उतार देते हैं. Wash ourselves. हम अपने आप को धो लेते हैं. But these things are things in the world. हाँ, पर ये जगत संसार के लाभदायक बातें हैं. Touching us every day. ये तो हमारे प्रतिदिन में हमको छू जाते हैं. But do we have that kind of an attitude? पर क्या इनके विषय में ऐसे मनसा को हम बना के रखते हैं? And to get rid of these things, क्या इन बातों को हम अपने आप से दूर निकाल फेंकते हैं? for that इस कारण के लिए you must have an incentive. हाँ, तुम्हारे पास कुछ लाभ की बात होना You must चाहिए. have seen the greatest thing. और इससे भी बेहतर बातों को तुमने देख रखा. He says in verse 8, 8 वचन में कहता है doubtless I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus. वरन मैं अपने प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं. In Ephesians chapter 3 verse 8, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 8 वचन में it is written there are unsearchable riches in Christ. और वहां पर लिखा गया है यीशु मसीह के अगम्य धन है. There are unsearchable riches. और ऐसे धन है जिसको हम गिन नहीं सकते या पहचान नहीं सकते. In this world we look at the riches और जगत संसार के इस धन संपत्ति को अगर हम देखेंगे, even unconsciously. हाँ, मतलब अनजाने में भी हम देखेंगे, We get a desire. हाँ, हमको जो है एक चाहत उत्पन्न होता How है. nice if I have those things. हाँ, कितना अच्छा होगा कि ये भी मेरा होता. It's a very dangerous thing. हाँ, ये बहुत ही खतरनाक बात है. Even without our attention, our knowledge, things happen in our hearts. हाँ, हमारे सोच विचार के बगैर ही हमारे दृष्टि ना होने के बावजूद भी कई बार ये बातें हमारे जीवन के अंदर घट जाती है. Last month I was looking at videos, YouTube videos is there, no? और YouTube के अंदर वीडियो आते हैं ना, This उसको मैं YouTube- पिछले महीने it एक बार is- देख this रहा था. YouTube is very dangerous tube nowadays. ये YouTube जो है बहुत खतरनाक ट्यूब बन गया है. In Telugu we call it nu gottangadu ani. YouTube means मतलब तू ट्यूब के अंदर चला गया, तू खड्डे में चला गया, समझिए. there ऐसा. are so many gottangalus. These tubers, they put us in the tubes. एकदम हमको ऐसे पाइप के अंदर डाल देते हैं. So I used to observe how people used to search hidden riches. हाँ, कैसे अनदेखी धनों को खोज खोज के निकालते हैं, मैं देख रहा था. Sometimes it was interesting how they check and extract hidden riches. हाँ, जो छुपी हुई धन को किस तरीके से वो खोज के जांच पड़ताल करके वो निकालते हैं, वो After- देख के बहुत अच्छा लगने लगा. After 2-3 weeks, I just checked how much time I am spending. हाँ, looking 2-3 at हफ्ते it. बीत जाने के बाद मैंने देखा यार मैं कितना समय बिता चुका हूँ. Instead of using that time that way, study the word of God. और ऐसा YouTube में इन वीडियो को देखने के बजाय मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ सकता So था. I thought if I observe those only videos, how they search out riches, what is the use? I am not getting any riches from that. हाँ, Even a part of it. मैंने सोचा कि ये लोग जो है जो खो गया उस धन को ढूंढ निकालने के वीडियो को मैं देख रहा हूँ, उनको तो धन मिल रहा है, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है वीडियो देखकर. So I started examining तो myself. मैं अपने It जीवन really को happened in परखने- my life, मेरे I'm telling जीवन में you. वास्तव में घटी हुई बात है. I'm telling, I examined myself. Why I am looking at these videos? So maybe they may be interesting. हाँ, बिल्कुल है कि देखने के लिए अच्छा लगता है, पर मैं इन वीडियो को क्यों देख रहा हूँ? The Lord revealed me a truth. और प्रभु ने मुझे एक सच्चाई I बताया. am spending that time on video, observing those riches because there is inside me
love of money. हाँ मैं अपने समय को इन वीडियो को देखने के पीछे क्यों खर्च कर रहा हूं, क्योंकि मेरे मन में धन की अपेक्षा है It was influencing my heart. और मेरे मन के ऊपर ये जो प्रभाव डाल रहा है। Once that awareness came, और जब इस बात को मैंने पहचान लिया, I shuddered. हाँ मैं एकदम ऐसा दिल मिल गया। Without my knowledge, how it is influencing me. हाँ मेरे अनजाने में ही मुझ पर कैसे प्रभाव को डाल रहा है। A visual stimulus हाँ एक दृष्टि के ऊपर प्रभाव डालने वाली ऐसी कुछ बात through a video एक वीडियो के द्वारा going into my मेरे eye. आंखों के भीतर जाके It is fitting in the brain मेरे सिर में मस्तिष्क में बैठ रहा है and it is commanding my hands और मेरे हाथों के ऊपर प्रभाव डाल रहा है to look at those videos. और उन वीडियो को देखने के लिए मुझे What a उत्तेजित कर रहा है। what a danger it is, bro. कितना खतरनाक खतरे को उसने लाया देखिएगा। I immediately left it. और मैंने तुरंत छोड़ दिया उसको। There's so many things times it happen like that. और कई बार हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है। But look at the always should not lose the goal. पर हमारे जीवन में हमेशा हमारे जो गम्य को है हमें नहीं खोना है। See those who compete in these athletic games, और ये दौड़ भाग के अंदर मलयुद्ध के अंदर जो भाग लेते हैं, they have their goal very clear. हाँ उनका जो गम्य जो है उनका निशाना जो एकदम उनके नजर में रहता है। Better that in India you got shooting items, you got 2 silver medals. हाँ हमारे जो शूटिंग में कम से कम 2 चांदी के हमको वो मिले हैं। But what are the rest of us? पर हमारे बारे में क्या सोचे? What medal we are getting? हम कौन से ऐसे पदक को लेने वाले हैं? What is the target for us? हमारे लिए गम्य क्या है? Is it Lord Jesus Christ? क्या वो प्रभु यीशु मसीह है? There is nothing greater than him. हाँ उससे बेहतर हमारे जीवन में कुछ There is नहीं। nothing greater than him, the whole universe. और सारे जगत संसार में उससे भी बेहतर हमारे लिए कोई और नहीं है। That's why Paul says और इसलिए प्रेरित पौलुस that कहता I है may win Christ, ताकि मैं मसीह को पालूं, that I may gain him. ताकि मैं उसको मेरे जीवन में प्राप्त कर लूं And verse 9 says, and be found in him. और उसमें पाया जाऊं। Before him, उसके पहले any riches, any knowledge, anything just pales. और उसके सामने सारा धन संपत्ति, सारा पढ़ाई लिखाई, सारा मेरा लाभदायक बातें जो है कूड़े समान दिखाई देते हैं। So in this race, you require a passion. और इस दौड़ भाग में तुमको एक उत्साह को बनाए रखना है। Not only consider it as a poverty of your flesh. और ना केवल इसको शरीर की एक गरीबी के समान गिनना, इतना ही नहीं। Secondly, दूसरी you बात, must have a passion for Christ. और तुम्हें मसीह के लिए एक उत्सुक होकर उत्साह के साथ रहना है। Passion means with all force, that हाँ, is an intense desire. सारे बल शक्ति का इस्तेमाल करना है। You must know Christ. तुम्हें मसीह को जानना है There is nothing richer or greater than him. और उससे धनवान या फिर उससे हमारे लिए लाभदायक और कोई बात है If नहीं। you really see him and know him, अगर तुम उसको जानो और उसको देखो, you can easily remove all these things from your life. हाँ तुम्हारे जीवन में इन सारी बातों को निकाल फेंक Now सकते in हैं। verse 10 Paul says, और 10 वचन में प्रेरित पौलुस कहता है that I may know him. ताकि मैं उसको जानूं। What a statement it is. क्या उसकी एक बात है, देखिए। Paul is writing this letter from prison in Rome. और कैद खाने से, रोम के कैद खाने से जो है प्रेरित पौलुस इस बात को लिख रहा है। By that time he made 3 missionary journeys. और तब तक जो है वो 3 ऐसे सुसमाचार के जो यात्राओं को पूरा किया है। He planted so many churches. कितने सारे मंडलियों की स्थापना की है He did lot of ministry. और बहुत सारी सेवकाई को उसने पूरा किया। Oh, he knows Lord Jesus Christ. और वो प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहता है So much he knows about him. और उसके बारे में इतना कुछ जानने के बावजूद Now he says, अब वो कहता I है may know him. मैं उसको जानूं। So anybody can ask Paul, अब प्रेरित पौलुस से कोई पूछ सकता है what more you want to know him? और अधिक क्या जानोगे? You already know him so much. अरे प्रभु यीशु मसीह को तो पहले से इतना कुछ And जानते you हो are telling about him to so many people so और much. अब इतने सालों से इतने सारे मंडलियों में तो उसके बारे में सुना भी चुके हो। He says, अब कहता है, I still want to know him और more. और भी अधिक उसके बारे में जानना चाहता हूं। There are unsearchable riches in him. और उसके अंदर अगम्य धन है, कहता है। Any amount you know him, still there is enough to know him. जितना कुछ भी उसके बारे में जान ले, उसके अंदर जानने के लिए और भी बातें बाकी है। In heaven, what will we be doing? स्वर्ग में हम क्या करेंगे बताइए? What will you do? हाँ In the स्वर्ग में heaven? हम क्या करेंगे? Worship. No? आराधना करेंगे। But worship is a process. There are so many ways you worship him. आराधना जो है एक प्रक्रिया है। आराधना के बहुत सारे तौर तरीके हैं। We know him हाँ उसको जानते हैं in eternity. सनातन में उसको जानेंगे। What we know here about Christ, मसीह के बारे में जो कुछ हम यहाँ पर इस प्रस्तुत काल में जो जानते हैं it is very little. बहुत कम है। It only according to our salvation
and sanctification. हमारे उद्धार के विषय में, हमारे पवित्रीकरण के विषय में चंद बातों को हम जानते There are हैं। so many things in him which we cannot know now. हाँ, उसके अंदर इतनी सारे अगम्य बातें हैं जिनको आज हम नहीं जान सकेंगे। In heaven we will be continually know him. पर स्वर्ग में उसके बारे में लगातार हम जानते रहेंगे। To what time? कब तक? For eternity. सनातन तक। So for eternity, so much of knowledge is hidden in him. हाँ, सनातन तक इतनी सारी धन की बातें उसके अंदर छिपी हुई है। So much of glories are hidden in him. उसके अंदर इतनी सारी महिमा की बातें लिखी गई It है। requires eternity for us to know about him. उसके बारे में जानने के लिए सनातन हमारे लिए That's why Paul जरूरत says, है। I may know him. ताकि मैं उसको जानूं I may know him more. और उसको और भी जानूं, He says, and I may know the power of his resurrection. और उसके मृत्युंजय के सामर्थ्य को जानूं। The greatest power. और सबसे सामर्थ्यवान शक्ति है। Nobody has been resurrected on his own. अपने आपे में कोई मृत्युंजय नहीं हुआ है। There are people who are resurrected in Old Testament and there's a New Testament. और पुराने नियम में भी, नए नियम में भी मृत्युंजय किए जाने वाले लोगों को हम देखते हैं। We take an example of Lazarus. और उदाहरण के तौर The पर लाजर को Lord देखते हैं। Jesus raised him from death. और प्रभु यीशु मसीह ने उसको मुर्दे में से जिलाया। In John's Gospel, chapter 11. और यूना रचित सुसमाचार 11 अध्याय He rose from death. वो मुर्दों में से जी उठा। Did he die again? क्या फिर से मरा? Yeah. हाँ, बिल्कुल मरा। He's a unique person. हाँ, वो एक विशेष व्यक्ति है। He has 2 death हाँ, certificates. उसके 2 मृत्यु के सर्टिफिकेट है उसके पास। Somebody said like this. और किसी ने ऐसा कहा, When he died the second time, और वो दूसरी बार जब मरा, his wife went to the office, get a pension, family pension. उसकी पत्नी जो है पेंशन के ऑफिस में चली गई Asking for a pension. और My उसने बोला husband मुझे died. पेंशन दो। So they said, oh, get the death certificate. और उन्होंने बोला कि तुम्हें मृत्यु की पत्री देनी पड़ेगी। Which one do you want, sir? First or second? तो पत्नी ने बोला कि पहला दूं कि दूसरा वाला दूं। That fellow got shocked. What? First or second? और पहला सर्टिफिकेट क्या, दूसरा सर्टिफिकेट No, sir, क्या? he has 2 death certificates. क्योंकि उसके पास 2 डेथ सर्टिफिकेट है। Why Lord Jesus Christ rose again on the 3rd day? और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह फिर से क्यों जी उठा? Do you understand? उसको Then तुम जानते हो? did that question ever come to you? क्या आपके मन में कभी ये सोच विचार आया? You would have come to life second day itself. और दूसरे दिन ही आ सकता था वो, तीसरे दिन क्यों आया? On the same day, after some hours, it can come back to हो life. No? सकता है कि कब्र में डालने के कुछ घंटों बाद भी वो जी उठ सकता था। Why on 3rd day? तीसरे दिन क्यों? There is a reason. उसका कारण है। Jews give death certificate. They don't have doctors those days to come and certify, test the pupils, take a ECG and give a certificate. और उन दिनों में ऐसे डॉक्टर नहीं थे कि वो आकर उसके सांस को परखे, आंखों को देखे या फिर दिल के धड़कन को नापे और कहे कि हाँ ये सचमुच में मर गया कर। Yeah, I used to do all that. I'm क्योंकि a मैं medical डॉक्टर person. था तो मैं इन सारी बातों को करता And था। many times I gave death certificates like कई that. लोगों को ऐसे मृत्यु के Those सर्टिफिकेट days मैंने they don't दिया। have all those facilities. पर उन दिनों में, यहूदियों के समय में, मतलब यीशु मसीह के उन दिनों में ऐसे सारे सहूलियत नहीं थे। They used to wait for 3 days. वो 3 दिन तक रुक कर रहना पड़ता था। After on 3rd day they will give death certificate. 3 दिन रुकने के पश्चात जो है, हाँ सचमुच ये व्यक्ति मर गया कर Really देते थे। another example. और एक उदाहरण बताता हूँ। Lord Jesus Christ raised from death 3 people. और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से 3 लोगों को जी उठाया। One small girl एक जो छोटी सी लड़की थी in her own house. और उसके खुद के घर के अंदर, And the Lord Jesus went and raised her up. और प्रभु यीशु मसीह गए उसके घर के अंदर, उसको वहां से जिलाया They all actually laughed at him. और सब लोग उसको देखकर हंसने And लगे। Jewish leaders did not worry at all. और यहूदी लोग जो है इसके बारे में चिंता ही नहीं, Because after few hours the Lord raised her up. क्योंकि कुछ चंद घंटों के बाद ही प्रभु यीशु मसीह ने उसे बालिका को जगा दिया। She went into some unconsciousness of woman. He went and raised her. हाँ, तो ये ऐसा बात फैलाने लगे, वो लड़की जो है कुछ ऐसे बेहोश हो गई, इस कारण से उसने जगा दिया। He raised another person, young man, और एक बार उसे एक जवान व्यक्ति को जगाया। in the city called Nain. नाइन के जो विधवा का बेटा था, On the way from home to the graveyard. और वो घर से निकलकर कब्र की ओर जा रहा था। He went and touched that fire and the bang, that boy rose up. और मृत्यु की शैया को उसने छुआ और जवान लड़का जो है बैठ गया। That must be a few hours ago. वो भी कुछ चंद घंटे बीते Those होंगे। days there were no freezer boxes. और ऐसे फ्रीजर के कोई
वो बॉक्स नहीं थे। Anybody dies there, after few hours he has to be buried. हाँ, क्योंकि कुछ घंटों के दरमियान ही जो है जो भी मर चुका है उसको गाड़ देना जरूरी Even था। then Jewish leaders didn't bother तब about भी जो है यहूदी नायक ने सोचा यार कोई चिंता नहीं, फर्क नहीं पड़ता। raising a man from death is not a normal thing. हाँ, मुर्दों में से किसी को जिलाना ये साधारण बात नहीं है। Understand that? आप समझते हो इस बात को? Even now, आज भी, if anybody makes a dead person live, और आज भी कोई मुर्दों में से किसी को जिलाता है, my God, बाप रे, वो तो बड़ा शक्ति बन जाएगा। he'll become the leader of the world. हाँ, इससे जगत संसार का मालिक बन जाएगा। But here the Lord Jesus Christ raised people from death. हाँ, और यहाँ पर दोनों, एक छोटी लड़की को, एक जवान व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिलाया। Nobody bothered. That किसी को didn't चिंता bother. नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ा। Here comes John's Gospel chapter 11. अब यूहन्ना रचित सुसमाचार He raised a man who was died 4 days ago. हाँ, अब देखिएगा, ऐसे एक मनुष्य को उसने जिलाया जो 4 दिन कब्र में था। Oh, the whole Jerusalem knows it. अब पूरा यरूशलेम को मालूम था, Bethany knows it. बेतनी को पूरा मालूम Here था। a fellow died 4 years ago. अरे ये व्यक्ति तो 4 दिन पहले मर गया Lord था, Jesus Christ came there. और वहां प्रभु यीशु मसीह Said, आया, Lazarus, come forth. और वो मनुष्य जो है अब कब्र में से निकल चला। He spoke by name, you see. और देखिएगा उस व्यक्ति को नाम से बुलाता है। If he has not spoken that Lazarus, all the dead fellows would have come back. हाँ, अगर वो लाजर कर नहीं पुकारता, मेरे को लगता है उसकी आवाज से तो सारे कब्र में से लोग निकल कर आ जाते थे। But he wanted only Lazarus to come वो up तो to life. केवल लाजर को बुलाया उसने। What happened in John's Gospel chapter 11? और यूहन्ना रचित सुसमाचार In the last अध्याय में क्या हुआ? last आखिरी portion भाग of the में, chapter, आखिरी भाग अध्याय के- Immediately all the Jewish leaders call for emergency meeting. और तुरंत ही सारे यहूदी नायक ने इमरजेंसी मीटिंग बुला दिया। Because you know what's happening? अरे अब तो कुछ गड़बड़ी हो Oh, रही this है। man is raising dead people. अरे अबे तो मुर्दों को जिला रहा है Now he has व्यक्ति। become a challenge to us. अरे ये तो हमारे लिए सवाल चुनौती हो गया। Now he must somehow get rid of this fellow. अब इसको किसी ना किसी से इसको बंद करना पड़ेगा। Why these people responded? अब क्यों अभी प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं? 3 days passed. क्योंकि 3 दिन बीत चुके थे, Normally they will give a death certificate. और अब तक तो उसकी मृत्यु की पत्री भी दी गई होगी। Lord Jesus Christ cancelled that death और अब certificate प्रभु यीशु मसीह ने उस डेथ सर्टिफिकेट को खारिज कर दिया। and raised that man from death. अब मुर्दों में से इस व्यक्ति को उसने जिला दिया, So that is the importance of 3 days. और इसीलिए 3 दिन बहुत प्रमुखता रखता That's है। why Lord Jesus Christ came back to life on the 3rd day. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे हैं। That's why they cannot deny that he died. और इसमें इसीलिए कोई संशय नहीं है कि वो मर चुका है। He died वो मरा, on the cross. क्रूस के ऊपर मरा, He defeated death. और उसने मृत्यु को अंत किया। So many religious books they have written Lord Jesus Christ did not die on the cross. He only fainted and he came to Kashmir and not. It's a stories they write. बहुत सारे गड़बड़ी लिखने वाले बहुत सारे ऐसे बेकार की बातें लिखते हैं कि वो कभी मरा ही नहीं, उसके बदले में किसी और को डाल दिया, वो कश्मीर में गया, पता नहीं नाना प्रकार की कचरे के बातें जो You know the reason why they concoct all these stories? और इन सारी कहानियों को उन्होंने क्यों फैला दिया, आपको मालूम है? If they accept that he came back to life after death, क्योंकि अगर वो मान लेते कि वो मुर्दों में से जी उठा है, they have to accept him as God. उसको परमेश्वर कर उसको ग्रहण करना पड़ता, That they don't want to do. वो नहीं करना चाहते थे, But he is God. पर वो परमेश्वर है। He came back to life after वो 3 days. वो मुर्दों में से 3 दिन के बाद जी उठा है, That's why Paul says here that I may have the power of his resurrection. और इसलिए प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहता है उसकी मृत्युंजय की It is the सामर्थ को, greatest power. वो सभी शक्तियों में से, सामर्थ्यों में से सर्वोत्तम सामर्थ्य है, He has given us that power. और उस सामर्थ्य को उसने आपको और मुझको दे You रखा can है। have your Christian life based on the power of resurrection. और तुम्हारे मसीहत के जीवन को इस पुनरुत्थान के सामर्थ्य पर निर्भर कर It is सकते called newness of life. वो जीवन की नवीनता है। Romans chapter 6 and first 4 verses. रोमियो की पत्री 6 अध्याय That पहले you are 4, buried with him, you are crucified with him, you are buried with him, you are risen with him. और तुम उसके साथ क्रूस के पर घातित हो, गाड़े गए हो, और तुम फिर से जी उठे हो, That we may have newness of life. ताकि तुम्हारे अंदर जीवन की नई चाल हो, Another new life empowered with the power of resurrection. और ऐसा एक नया जीवन जो पुनरुत्थान के सामर्थ्य के द्वारा भरपूर है। Thirdly, he says you may have fellowship of the sufferings. और उसके साथ साथ प्रेरित पौलुस फिलिपियों की पत्री में कहता है उसके दुखों में सहभागी होने की सामर्थ्य को, The resurrected power, और एक मृत्युंजय की सामर्थ्य को, just beside they got sufferings which are conformable unto his death. और दुखों में सहभागी होने की, मतलब Such- मृत्यु तक उसको ले जाने वाले दुखों में भी वो सहभागी होना Such चाहता है। difficulties will come to us. और हमारे ऐसे जीवनों में ऐसे दुख भी आएंगे, It is the power of resurrection which makes us to overcome those things. ऐसे दुखों में हमें मृत्युंजय का सामर्थ्य जो है बल देता है। Verse 11.
11 वचन, if by any means और मैं किसी भी रीति I से might attain unto the resurrection of the dead. मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। This is the second principle. और ये दूसरा सिद्धांत The है। third principle is और तीसरा सिद्धांत ये है, that perfection has to be encouraged. और परिपूर्णता जो है प्रोत्साहित किया जाना चाहता है। Verse 12 says, 12 वचन कहता not है, as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after. If that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 12 वचन, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। It takes a lot of time to expound these verses. और इन वचनों को समझाने के लिए बहुत समय लगेगा। I'll summarize. उसको संक्षिप्त में बताने की कोशिश करता हूं। When Lord Jesus Christ came here, died for us, और जब प्रभु यीशु मसीह जगत संसार में आए और हमारे लिए मारे गए, it is to save you and me. आपको और मुझको उद्धार देने के लिए है। Paul says, और प्रेरित पौलुस कहता है, Christ has apprehended me. और मसीह ने मुझे पकड़ लिया है। The word apprehended, और ये पकड़ लेने की ये शब्द को it comes from a Greek word katalambano. और कटालम्बानो नामक यूनानी शब्द से उत्पन्न होता It's है, like catching a thief. और एक चोर को पकड़ लेने के समान है। How much police people try, they run after him. हाँ, पुलिस को देखिएगा, चोर को पकड़ने के लिए कितना दौड़ते हैं। He may escape also. हाँ, वो कभी कभी बच भी जाता है। Our attitude is like that. हाँ, हमारा बर्ताव ऐसा It है। is because of him that we are saved. हाँ, उसी के कारण से हम जो है बच चुके हैं। Not that something good is in us. हाँ, हमारे अंदर कोई भली ही बात है, इस कारण से हमने उद्धार नहीं Actually, पाया। we were running away from him. हम तो उससे दूर भाग रहे थे, He was after us पर वो दौड़ा हमारे पीछे आया, and caught us वो हमको पकड़ लिया to give eternal life. ताकि हमको सनातन का जीवन Now, दे। Paul says, प्रेरित पौलुस कहता I have है, understood that. अब मैं इस बात को समझ चुका The हूँ। Lord came and he apprehended me. हाँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया और मुझे दौड़ कर पकड़ लिया। चोर का पकड़ने से कैसा वैसा हाँ, जैसे चोर के पीछे दौड़ कर पकड़ते हैं, ऐसा यीशु मसीह मेरे पीछे पीछे होकर मुझे पकड़ लिया, he caught hold of me. मुझे पकड़ लिया। For some purpose he did किसी that. उद्देश्य के लिए उसने इस काम को He किया। wanted to give me something हाँ, great. मुझे कुछ उत्तम बात वो देना Now चाहता I था। am now doing the reverse. अब मैं जो है उल्टा कर रहा हूँ। I may apprehend that for which he apprehended हाँ, me. मुझे जिस लिए उसने पकड़ा, उस बात को समझने के लिए, उस उद्देश्य को समझने के लिए मैं उसके पीछे दौड़ा चला जाता हूँ। How he is doing that? कैसे कर रहा है? Press on. हाँ. Verse 12 says. हाँ, 12 वचन कहते हैं, दौड़ा चला जाता हूँ। Press on means no question of tiring. हाँ, मतलब उसमें थकने का या फिर पीछे हटने का कोई संभवता नहीं है। No question of sleeping in the afternoon हाँ, session. दोपहर के मीटिंग में सोने का तो कोई संभवता ही नहीं है। I must press on. हाँ, मैं दौड़ा चला जाता हूँ, Press on दौड़ा चला जाता हूँ, till I get that. जब तक कि उसको पकड़ू नहीं। Oh, this is not a normal race. अरे साधारण दौड़ नहीं है, This is something serious. हाँ, ये बहुत ही अहमियत वाली बात है। There will be things that which is drawing me back. हाँ, कुछ बातें ऐसी भी हो सकती है जो मुझे पीछे खींच रही होगी। But I have to press on. हाँ, मुझे आगे की ओर दौड़ना There है। will be decisions in me, temptations in me, मेरे अंदर कोई कमी घटिया, कोई परीक्षाएं हो सकती है। some severe tests. हाँ, कई बहुत ही खतरनाक I परीक्षाएं भी हो must सकती press है, on. पर मैं दौड़ा चला जाता Verse हूँ। 13, he is following a principle. 13 वचन में एक सिद्धांत का वो पालन करता I है। count not myself to have apprehended. हाँ, मैं ऐसा नहीं मानता कि मैं उसको पकड़ चुका हूँ। It's not that the race is over. हाँ, ऐसा नहीं कि दौड़ पूरी हो गई है। But this one thing I do, हाँ, मैं इस बात को मैं करता हूँ, forgetting those things which are behind. जो पिछली बातें हैं उनको पीछे रह गई उनको भूलकर, What are those things which are behind? और पीछे रह जाने वाली बातें कौन सी है? Plus and minuses. हाँ, जो जोड़ी हुई, जो घटी हुई बातें हैं। There may be some great things in our spiritual life. हमारे आत्मिक जीवन के अंदर कुछ अच्छी बड़ी बड़ी बातें भी Very हो good सकती thing है। that we did for the Lord. हाँ, प्रभु के लिए बहुत अच्छे काम को कुछ कभी Good हमने किया gospel, होगा, good gospel campaigns, अच्छे सुसमाचार के दौड़ को पूरा किया होगा, good points of our testimony. हमारे गवाही की अच्छी अच्छी बातें रही होगी। But we'll go on looking back. हाँ, पीछे मुड़कर देखोगे, You call it living in the past glory. हाँ, ऐसा उसको कहते हैं, हम पिछली हमारी महिमा में हम जीवन को बिता रहे हैं। Many times it happens to us. ऐसा हमारे साथ हमेशा We होता है। don't know what's happening to us now. हाँ, अब हमारे साथ क्या हो रहा है उसको हम भूल जाते हैं। We are in court actually now. हाँ, अब हम कोर्ट में हैं। But always say, Brother Boxing Days, हाँ, कोर्ट कचहरी में होके
हमारा न्याय किया जा रहा है इसको भूल जाते हैं, पर हम क्या है किसको याद करते हैं? अरे भाई बक्सिंग के दिनों में ऐसा था वैसा था कहते रहते हैं। Always living in the past glory. हाँ, पुराने महिमा में जीवन को बिताते हैं। They should not hinder our race. हाँ, हमारे दौड़ को वो रोकना नहीं चाहिए। Or it cannot be even negative things. हाँ, या फिर हमारे खिलाफ की बातें भी हमको रोकना नहीं चाहिए। Sometimes you may get depressed in your spiritual life. हमारे आत्मिक पिछली जीवन को देखकर हम कभी कभी दुखित हो You सकते should हैं, not continue in those depressions. और ऐसे दुखित बातों में हमको बने नहीं रहना है, Forget them. उनको भूलना है। You have a present race. हाँ, प्रस्तुत काल में तुम्हारे पास एक दौड़ है You have to go on running. और उसको दौड़ा चला जाना Forget है। those things. उन बातों को भूलना है, And reaching forth unto those things which are before. और जो हमारे आगे की रखी हुई बातों के लिए दौड़ा चला जाना है, There is still more race we have to run. और भी दौड़ को हमें पूरा करना We है, must complete that. हम उसको पूरा करना है। I press on. मैं Again he उसके लिए says. दौड़ा चला जाता हूं कहता है, 2 times the word press on comes. और ये 2 बार ये शब्द को हम यहाँ पर देखते In हैं। his scriptures, anything that is repeated is emphasis. और कभी कभी वचन में 2 बार इसी बात को, कभी किसी बात को लिखा जाता है तो उसके बाद बहुत अहमियत होती है। It is the thing. हाँ, वो बहुत ही अहमियत की बात It है। is the only thing. हाँ, वो एकमात्र अहमियत की बात है। Lord Jesus Christ, many times he said, और प्रभु Verily, verily, I say unto you. और प्रभु यीशु मसीह कई बार कहता है, सच सच मैं तुमसे कहता हूँ, क्या वो हिंदी में कैसा है वो? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। हाँ, such, that's good. That means it is the thing which I am telling you now. मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो एकमात्र अहमियत की बात है। That verse actually come from Greek words amen. और अमीन इस यूनानी शब्द से वो The निकल Lord कर will just आता ask, है। amen, amen. हाँ, प्रभु कहता है अमीन अमीन। You must listen to this. This is the truth, the truth. और इसका मतलब ये है कि बहुत ही गहरी सच्चाई है, इसको तुम ध्यान से सुनो। The Lord Jesus Christ is named as the King of Kings. और प्रभु यीशु मसीह को राजाओं का राजा कहते हैं। That means he is the only king. हाँ, इसका मतलब ये है कि वो एकमात्र राजा He है is the Lord of Lords. और प्रभुओं का प्रभु है। He is the only Lord. वो एकमात्र प्रभु है। In Old Testament, we have a book called Song of Songs. और पुराने नियम में क्या कहते हैं? श्रेष्ठ गीत, गीतों का गीत कह सकते हैं। Though it is English written Song of Solomon, सॉन्ग ऑफ सोलोमन करके लिखा गया है, but in Hebrew it is Song of Songs. हाँ, हिंदी में इसका अनुवाद ठीक है, श्रेष्ठ गीत मतलब गीतों का गीत। It is the song. हाँ, मतलब इसके अलावा कोई गीत हो ही नहीं There सकता। may be many songs, but this is the one हाँ, song. मतलब बहुत सारे गीत होंगे पर यही गीत है। That is the meaning of repetition in scriptures. हाँ, इसीलिए जब वचन में किसी बात को दोहराया जाता है तो उसकी अहमियत को ऐसे पहचानना I है। press on. ओ मैं दौड़ा चला Now जाता this is हूँ। only one race put before me. हाँ, मेरे सामने एकमात्र दौड़ रखा I गया am है। pressing on ओ उसकी ओर मैं दौड़ा चला जाता for हूँ। the mark of the prize of the high calling of Christ Jesus. और जो उस ऊंची बुलावट की ओर और जो गम्य मेरे लिए रखा गया उसको मैं पाने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। For this spiritual race, और इस आत्मिक दौड़ के लिए verses 15 and 16, 15 और 16 वचन there are some perfect models. और कुछ विशिष्ट जो है उदाहरण है हमारे लिए। This is the fourth principle of a spiritual race. और आत्मिक दौड़ के कुछ चौथा ये सिद्धांत है। God has given us some examples. हमको प्रभु ने जो है एक उदाहरण दिया है। So those who take part in this sports, और जो खेल कूद में जो भाग लेते हैं they get the videos of the previous best players. और उनसे पहले दौड़ने वाले जो खिलाड़ी हैं उनके वीडियो लेते हैं। Suppose somebody want to learn cricket, अगर मानो कि आप क्रिकेट बैटिंग सीखना चाहते they'll हैं download all the videos of how Sachin Tendulkar और played, सचिन तेंदुलकर कैसे बैटिंग करता है उसके वीडियो को बहुत and देखेंगे, they observe very carefully हम बहुत अच्छे से देखेंगे। how he has hit a forward shot, हाँ, या आगे बढ़ के कैसे मारता है how he has hit a sweep shot. और कैसे वो स्वीप शॉट मारता है, All those things they observe very carefully. अच्छे से वो ध्यान मनन करके देखते Some हैं। models are required. और इसीलिए हमारे लिए उदाहरण की There जरूरत are है। so many people who have gone before us. वो हमसे पहले जाने वाले बहुत सारे लोग That's why हैं there people are filled in Hebrews chapter 11. और इसीलिए इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में बहुत सारे आत्मिक हमारे लिए जो उदाहरण रखे गए The हैं heroes of faith, और विश्वास के हीरो हैं, they have gone before us. वो हमसे पहले गुजर चुके We हैं can take examples. और उनका उदाहरण हम ले That's सकते why हैं their details are written in the scripture. और इसीलिए वचन में उनके उदाहरण लिखे In गए our हैं। own present time, there are many people of God, और प्रस्तुत काल के हमारे इस दिनों में भी बहुत सारे परमेश्वर and के उदाहरण हैं their life details are explained before us. और हमारे सामने उनके जीवन के उदाहरण हमारे रखे गए That's हैं what is mentioned here. और इन्हीं बातों का यहाँ पर लिखा गया है। As many as be perfect, be thus minded, and और- if anything ye be otherwise minded, God shall reveal this unto you. और हम में से जितने सिद्ध हैं
यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर Verse देगा। 17 is there. 17 वचन में Be कहता है, followers together of me and mark them हे who भाइयों walk तुम, even as ye have us for an example. और हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो कि इस रीति से पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम पर में पाते हो। That's why Paul could say in 1 Corinthians chapter 11 verse 1, और इसलिए पहले कुरिन्थियों की पत्री 11 पहले अध्याय के 11 वचन में कहता है, Be followers together of me as I also am of Christ. और मेरा अनुकरण करो जैसे मैं मसीह का करता हूँ। How dare he could say that? अरे कितना उसके अंदर ये विशिष्टता है कि वो इस बात को कह पाए। Can we say that? क्या हम कह पाएंगे? Can we have that guts to say? क्या हमारे पास ऐसी हिम्मत जोड़ Others to follow me as I have followed Christ? हाँ, हिम्मत जुटा करके हम ऐसा बोल सकेंगे कि मेरा तुम अनुकरण करे जैसे मैं मसीह का अनुकरण Does करता that हूँ। mean that Paul is saying I am perfect? क्या इसका मतलब ये है कि प्रेरित पौलुस कह रहा है कि मैं परिपूर्ण हूँ? He says in 2 Timothy, 1 Timothy, I am the chiefest of the sinners. और पहले तिमोथियस की पत्री में वो कहता है कि मैं पापियों का प्रमुख हूँ कहता है। Then they will ask Paul, you want me as to chiefest of the princes? Sinners? हाँ, क्या हम पौलुस से पूछ सकते हैं कि पापियों में प्रधान बनूं मैं? That's how you want to follow me? क्या हम ऐसा तुम्हारा पीछे कर रहे हैं? Paul is saying here, प्रेरित पौलुस कहता there है are so many fights, बहुत सारे वाली युद्ध there are हैं, so many things which some said they defeated me, और कई बातें ने मुझ पर जय पाई है, but God enabled me to overcome those पर things. प्रभु ने मुझे उनके ऊपर जयवंत होने के लिए अनुग्रह दिया है। You learn from me हाँ, how to मुझसे do that. सीखो कैसे ऐसे जीवन को बिताना I है am pressing on. और आगे की ओर बढ़ते जाओ। Oh, well, that's you learn from my mistakes, my failures, my victories, everything you will learn from me. मेरे हार में, मेरे जीत में, मेरे गिरावट में आप जो है मुझसे सीखो कहता I है। am pressing on, you also press on. मैं जैसे आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूँ तुम भी दौड़ा चला He जाओ। also gives some dangerous to avoid. कुछ हिदायत भी देता है कि खतरे से कैसे हमें बचना है। Verse 18, 18 वचन, there are enemies of the cross of Christ, और क्रूस के कुछ शत्रु हैं, and their qualities are, उनके ऐसे गुण हैं, their appetite is their God, और उनका पेट ही उनका परमेश्वर है, whose glory is in their shame, और उनकी लज्जा में ही उनकी महिमा है, who mind earthly things. और इस पृथ्वी संबंधित बातों को गमन करते हैं, They are very close to the people of God. और वो परमेश्वर के बहुत ही निकट They are having लोगों के any बहुत निकट। bad influence. हाँ, वो उनके पर बुरी प्रभाव को डाल देते हैं, God will, Satan will put his own agents. और शत्रु शैतान जो है अपने ही दूतों को हमारे बीच में रख देता He है। doesn't want to have us that crown or the prize. हमको जो है उस ऊंची बुलावट की मुकुट को पाने से रोक रखना चाहता है। He somehow makes us to slow in that race. हाँ, उस दौड़ में हमको किसी न किसी रीति से हमको धीमा कर देना चाहता है। He will put his agents. अपने दूतों को हमारे बीच में We रख must be देता है। very careful हमको सावधान रहना for है। discernment. हाँ, बड़े चौकस रहना है। Lastly, आखिर में the last one is the price to be attained. और जो जिस मुकुट को हमें पाना है, जिस इनाम को हमें पाना है, That is our citizenship is in heaven. हमारा स्वर्ग में हमारा नागरिकता है। This is particularly written here यहाँ पर लिखा गया, because the city of Philippi, और फिलिप्पी की जो नगर है, it is the Roman military camp. वो रोमी सेना का वो एक कैंटोनमेंट एरिया है। Roman army stays there. रोमी सेना वहां पर रहता है। So all the citizens of that Philippi, they should treat these Roman soldiers with favor. और ये फिलिप्पी के नगर के लोग जो है रोमी की सेनाओं को तो आदर या फिर उनका जो है भलाई करना चाहिए। For that reason, इस कारण से the Roman Caesar gave all the dwellers of Philippi Roman citizenship. और फिलिप्पी के नगर में रहने वाले सबों को वहां पर रोमा के नागरिकता जो है प्रदान कर दिया गया है। Roman citizenship is a privilegious thing. और रोमा का जो नागरिकता पाना ये बहुत ही सौभाग्य से भरपूर They have है। enormous rights and privileges. और इसके अंदर बहुत सारे उनको अच्छी बातें मिलती थी। They can even command situations. हाँ, कई परिस्थितियों में जो है उनके ऊपर वो हावी हो सकते थे। Paul and Silas they were imprisoned in Philippi. हाँ, देखिएगा फिलिप्पी में वो जेल खाने में पौल और सिलास बंदी थे, And they were beaten. उनको बहुत मारा गया। And you know what happened? और उसके बाद हम जानते कि क्या Night they हुआ। were singing songs. और रात में गीत गा रहे थे, And there is a special earthquake. और एक विशेष वहां पर भूडोल हुआ। It only breaks chains. केवल चेन को गिरा चुका And है it only opens gates. और केवल द्वार को खोल देता है। Nobody gets injured. कोई इसके अंदर घायल नहीं होता। And
that jailer came and wanted to kill himself. और जेल के अधिकारी जो अपने आप को मार डालना So चाहते morning they sent, the officer sent a information to him. और सवेरे के समय एक अधिकारी पत्र लेकर उनके पास आता है Loosen them, let them go. और वो बोलते हैं कि अब उसका कैद खोल देना, उसको जाने दो There is no case for him. और उसके खिलाफ कोई केस मत डालना। Paul said, प्रेरित पौलुस कहता we है are Roman citizens. अरे हम तो रोमी नागरिक हैं How can you do this to us? और हमसे हमारे साथ ऐसा तुम बर्ताव कैसे कर सकते Beating us left and अरे मैं right. तुमको मार देते हो, And then they asked me to आप live like that. छुपे छुपा छुपी जाने के लिए भी जब कहते हो, They got shuddered. एकदम लोग जो है वो डर गए थे, They know what is Roman citizenship. क्योंकि रोमा साम्राज्य का नागरिक का मतलब क्या है, उसका अधिकार क्या है, वो जानते They थे। sent back the information to the officers. जैसे उनके पास अधिकारियों के पास Oh, these are खबर Roman पहुंचा, citizens, not ordinary people. अरे रोमी साम्राज्य के नागरिक है, साधारण लोग नहीं है। They came and begged the वो दौड़ कर Paul and आकर उनको Silas. भीख मांगने Oh, लगे, don't make a case of अरे this. हमारे खिलाफ केस मत डालना, हमको केस हो जाएगा. हमारा केस हो जाएगा, Please forgive us. हमें क्षमा करो। That's the importance of Roman citizens. रोमी के नागरिक का इतनी प्रमुखता थी, That's why Paul is writing these things to Philippians. They can understand better. और फिलिपी के लोगों को ये बात अच्छे से समझने के लिए बातें लिख रहा We है। must also know all these things to understand better. और इन सारी बातों को भी हमें समझना चाहिए ताकि वचन हमको अच्छे से Our समझ आए। citizenship is not in Roman Empire. he हमारा says. नागरिकता कोई रोमी साम्राज्य में नहीं है, Our citizenship is not an Aadhaar card. और हमारा नागरिकता कोई आधार कार्ड से सीमित नहीं है। Our citizenship is in heaven. हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। Our names are written in the Lamb's book of life, हमारे नाम जो है मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे गए हैं, from which he will come, from which also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. और जहां से जिस स्वर्ग से हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह आने वाला है उसकी ओर हम ताकते Now what do हैं। you understand? Comparing 14th verse to 20th verse. अब 11 वचन से लेके 21 वचन तक जो है तुलना हम देख सकते हैं, You compare those verses. और उन वचनों को परख कर देखिए, He is the price और वही हमारा इनाम है, of the high calling of God. हमारी ऊंची बुलावट जो प्रभु से मिली है Our उसका prize is Lord Jesus हमारा Christ. इनाम प्रभु यीशु मसीह है। He crowns us with Himself हाँ, उसके साथ हमारा गणना करता है, because He is the worshipped by all heaven, हाँ, सारे स्वर्ग के साथ उसकी आराधना की जाती है, and He bestows us the best thing. और सर्वश्रेष्ठ बातों को हमें वो He प्रदान says करता है। He will change our lowly body हमारे दीनहीन देह को तब्दील कर कर that it may be fashioned like unto His glorious body. और उसे महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। Ours is a lowly body. हमारी बड़ी दीनहीन देह है, Afternoon session we'll just tend to sleep. और दोपहर के भाग में हम सो जाएंगे, We can't be awake to listen to the message. वचन सुनने के Not लिए about you. हम I'm not saying about you. आपके बारे में You नहीं are बोल fully रहा awake. हूँ, आप तो एकदम जागरूक हो। Many places I go for ministry. और कई दूर जगह दरार प्रांतों में जब मैं सेवकाई के लिए जाता हूँ, They are like a leaning tower. झुक जाने वाले खंबे के समान है वो। But परंतु Lord Jesus Christ will give such a body to us. पर प्रभु यीशु मसीह हमें ऐसा शरीर प्रदान It करेगा, overcomes every weakness that we have in this body. आज इस देह के अंदर जो भी कमजोरी है उन सबों के ऊपर वो जय पाएगा, And He subdues everything. और सबके ऊपर वो हावी हो जाएगा। He is our price. वो हमारा ऊंची In this बुरा है। spiritual race. इस आत्मिक दौड़ के अंदर, They are the principles that we have. Time is up. हाँ समय हो चुका है, ये हमारी आत्मिक We सिद्धांत must है, press on हमें दौड़ा चला जाना है to get that price. उस इनाम को पाने, He Himself is the price. वही हमारा इनाम है, We must gain Him. उसको हमें प्राप्त करना May है, be found in Him. उसके अंदर पाए जाना है। May the Lord help. प्रभु हमारी सहायता करे May the Lord bless this word. और इस वचन को प्रभु आशीषित करे। भाई राजेश जरा प्रार्थना के लिए आइए प्लीज। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थ्य सर्वाधिकारी महान स्वर्गीय पिता, आपके बड़े प्रेम दया के लिए धन्यवाद देते हैं। इस दोपहर के सेशन में आपने आपके कृपा से जो अनुग्रह का वचन हमारे बीच में लाया, धन्यवाद देते हैं। हमारे मसीह जीवन में कैसे प्रभु जी आत्मिक जीवन में हमें दौड़ में आगे बढ़ना है और निशान एक तरफ दौड़ना है और उस मसीह को प्राप्त करना है। और इस तरह से प्रभु जी पौलुस के जीवन की तरह कई प्रकार के आत्मिक बातों को हमारे बीच में आपने लाया, धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में प्रभु जी जो पुनरुत्थान की शक्ति है उसको हम अपने जीवन में अनुभव करना है, ताकि उस मृत्युंजय की सामर्थ्य को प्राप्त करो जो आशा पौलुस में है, और हम प्रभु जी हमारे प्रतिदिन के जीवन में भी उस शक्ति को पाकर आपके लिए
एक पवित्रता का जीवन, एक जीवन जीने के लिए और निशाने की तरफ दौड़ने के लिए प्रभु जी हमें तैयार करे। फिर अंतिम दिन में पिताजी और हमारे आत्मिक युद्ध संसार से, शरीर से, शैतान से, इस आत्मिक लड़ाई में प्रभु जी हमें विजयवंत होना है। इसके लिए पिताजी हमें बलवंत करे, सहायता करे प्रभु जी। इस तरह से प्रभु जी दिए हुए वचन के अनुसार आप ही हमें सिद्ध करें प्रभु जी। आपके उपदेश के अनुसार आपके आगमन के लिए तैयार करने के लिए विनती करते हैं। अब तक प्रभु जी जो वचन दिया है उसको आप प्रभु जी हमारे हृदय में सिंचन करें और प्रभु जी हमारे यहाँ दैनिक जीवन में अनुकरण करने के लिए भी सहायता करा। तक आपने कृपा दी का धन्यवाद देते हैं। आगे समय हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई थापा आकर अनाउंसमेंट्स करेंगे, उसके बाद आपके चाय दिया जाएगा। यहाँ से चलेंगे भाई डेविड और भाई जॉन। प्रभु जी निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ 748। इसके पहले 2 चरण केवल गाएंगे जॉन। 748। प्रभु जी निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जा रहा हूँ। प्रभु जी निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जा रहा हूँ। ऊंची बुलाहट के योग्य प्रतिफल पाने जा रहा हूँ। ऊंची बुलाहट के योग्य प्रतिफल पाने जा रहा हूँ। प्रभु जी निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जा रहा हूँ। प्रभु जी जो जो बातें मेरे लाभ की उन्हीं को मसीह के कारण, जो जो बातें मेरे लाभ की उन्हीं को मसीह के कारण, कूड़ा समझ कर मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। कूड़ा समझ कर मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। की ओर मैं दौड़ा चला जा रहा हूँ। प्रभु जी मसीह को प्राप्त करो मृत्युंजय की सामर्थ के द्वारा। मसीह को प्राप्त करो मृत्युंजय की सामर्थ के द्वारा। दुखों में सहभागी होकर उसकी समानता में आओ। दुखों में सहभागी होकर उसकी समानता में आओ। प्रभु जी निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जा रहा हूँ। प्रभु जी निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जा रहा हूँ। ऊंची बुलाहट के योग्य प्रतिफल
Once again, we thank each and every brother and sister who have come from near and from far. एक और बार सबको धन्यवाद है जो दूर से जो नजदीक से हमारे मध्य में आए हुए हैं। And kindly remember Borivali and Palghar assemblies, दया करके हमारे बोरोली और पालघर के लिए कंटिन्यू प्रार्थना करते रहे। especially for Palghar assembly, lot of challenges as far as opposition, ministry and other things. We are recording on YouTube, so we cannot explain much. पालघर के लिए प्रार्थना कीजिए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे चुनौतियाँ हैं, समस्या है और विरोध भी है, लेकिन फिर भी उसके लिए आप कंटिन्यू प्रार्थना करते रहिए। And continue to pray for Borivali assembly for the new year ahead. और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए बोरोली के लिए जो आगे और साल प्रभु हमको सहायता करे आगे बढ़ने के लिए। Tomorrow, please remember the ministry in Vasai, Vaikala and Borivali by our three brothers who have come from Hyderabad. हमारे बीच में जो 3 भाई लोग आए हैं हैदराबाद से, कल उनका बाइखला में, वसई में और बोरोली में उनका मिनिस्ट्री होगा, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। And kindly pray for their return journey tomorrow evening. और उनके कल शाम को उनको वापस जर्नी है अपना हैदराबाद के लिए, उनके लिए प्रार्थना करते रहिए। Brother David. गुड कल हुआ। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी दयालु स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आपकी दया अनुग्रह के लिए। आज आपने इस तरह बोरीवली के एनिवर्सरी के संदर्भ में और मुंबई के सभी कलीसियाओं के सभी विश्वासियों को आपने इस तरह एक फिर से एक बार हमारी आत्मिक जीवन की दौड़ के विषय में और हमारे आत्मिक जीवन की प्रभु जी संसार में जो हमें जो आकर्षित करता है उस संसार से किस तरह अलग होकर हमें दौड़ना है और हमें मसीह के इनाम को हमें पाना है, इस बातें में हमें समझाया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। और हमें इस तरह आपके वचन के द्वारा चिताया और इस अंतिम दिनों में इस संसार में रहते समय हम अपने आप को प्रभु जी अलग करते हुए आपके लिए और आपको पाने के लिए, जैसे पौलुस ने अपने आप को जो उसके लिए लाभ के कारण था सबको थोड़ा समझकर उसने पीछे कर दिया, सब कुछ हम भी प्रभु जिस तरह आपके लिए दौड़ते हुए आगे बढ़ने के लिए आप हमारी सहायता करें। जो वचन में दिया है उस वचन में आपको धन्यवाद देते हैं और हमारे जीवन में प्रभु जी आत्मिक और मंडलिक और पारिवारिक जीवन में इन वचनों के द्वारा प्रभु जी आपको पाते हुए आगे बढ़ने के लिए आप हमारी सहायता करें। जो वचन दिया है उस वचन को सिंचन करें और हम हमारे आत्मिक जीवन में और भी लाभ प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने के लिए आप हमारी सहायता करें। जो आए हैं दूर से नज़दीक से प्रभु जी वापस जाते समय उनको भी सुरक्षित पहुंचाइए, सहायता करें। आपके दास लोग जो हैदराबाद से आए हैं उनकी सेवा को, कल की सेवा को भी आशीष करें, सहायता करें। उनकी यात्रा के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, सहायता करें। और हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए हमारी प्रार्थना सुनाए, इसलिए आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रवेश मसीह के नाम से मांगते सुन ग्रहण कर, आमीन। अब पिता पर उसका प्रेम, पुत्र पर उसका अनुग्रह और पवित्र आत्मा पर संगति सदा सर्वदा सनातन के सभी के साथ बना रहे, आमीन। पिछली बात को भूलकर मसीह को मैं जानूं और जी उठने की शक्ति को, मसीह को मैं जानूं और जी उठने की शक्ति को, दुखों में सहभागी हो जाऊं, प्रभु की उत्तमता को पाने के लिए, प्रभु की उत्तमता को पाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्रभु के लिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्रभु के लिए। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीबॉडी। चाय और बिस्किट वहाँ पर रखा हुआ है, उसका आप